You can hear. Okay. मैं quickly ये दो बात खास आज बोलूँगा. सीड बॉल के हमने कैंप किए थे. सीड बॉल की टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सीड्स अलग-अलग ट्री श्रब्स वगैरह के लेके उसको कोट किया जाता है बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड या बायो फंगिसाइड से एंड द ग्रोथ एनहांसर. और फिर उसको जब कैंप करते हैं तो वो जो डिफिकल्ट जगह होती है जैसे कि टेरेन है, माउंटेन्स है, हिली एरियाज है या तो डीप वाटर का है, तो वहां पर वो ये सीड बॉल हम डाल सकते हैं और दैट हेल्प्स इन क्विकर प्लांटेशन. और मैं सोचता हूँ कि ये एकदम जल्दी से ये देना चाहिए. दूसरी बात, रिवर रिवाइवल की जब बात हो रही थी तो वी वर एडवाइजिंग द नमामि गंगे प्रोजेक्ट व्हिच इज the one of the largest project or the largest project in the world today of its kind, or the water management and the water flow management, no obstruction. Number two is each tree or shrub actually acts like a micro check dam. तो एक बायोशील्ड की परिकल्पना है. रिवर की दोनों साइड पे राइट काइंड ऑफ पेड़ पौधे लगाने की बात है. जैसे कि एवरी 100 किलोमीटर में मोर देन a crore न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स कैन बी रिक्वायर्ड. और मुझे बहुत खुशी है कि ये जो हम river on both the banks of the river by tree plantation and shrub plantation in a scientific way. And second is going for eco-agriculture practice. My friends, you will know that one of the greatest achievements of our country has been that we became food self-sufficient through the Green Revolution. Now, mark my word, the next one is going to be eco-agri revolution. The new generation eco-friendly inputs like biofertilizer, biopesticide, biogrowth enhancer, and converting agro-waste to biocompost locally. And this can also be taken up along with when you are doing the tree plantation. हमने इसके लिए we have actually demonstrated this for the ladies of Uttarakhand, especially in the Uttarkashi area, especially जो microbial spray which doesn't cost much, but it's a scientific way of microbial spray, it gets converted to biocompost quickly. And there is a huge requirement in our country and everywhere else of good biocompost, which helps in increasing the organic carbon in the soil, in fixation of the CO2 from the air, and so on. तो मैं सोचता हूँ बातें तो काफी होती है एनवायरनमेंट के बारे में. Everybody can talk about it. What we need is action, and for these actions, I think these two things you can ideally take it up in Uttarakhand, which can become a model for the whole country. And I'm sure the kind of team that I see here is capable of doing it. We will, of course, be very happy to give all the support, all the encouragement, and the necessary guidance for what you need. At the end, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है but there are opportunities. और working on environment, growing trees, taking care of rivers, I think it's the biggest spiritual or religious activity in today's world. ये
इसलिए मैं एक एंड में एक कपलेट आई जस्ट गिव इट टू यू दैट our dreams are for the earth, not heaven. Our dreams are for the earth, not heaven, because heaven is here to make, not on cloud 7. What is heaven but the earth beautiful? What is heaven but the earth beautiful? What is God but nature rejoicing in full? तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वेबिनार एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप बने फॉर एन एक्सीलेंट एक्शन प्लान इन द टाइम, बिकॉज व्हाट यू नीड इज एक्शन एक्शन एक्शन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मेहता साहब नमस्कार, और आपका आज का जो विचार थे हमें जरूर लाभान्वित करेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ गेस्ट की तरफ से हमारे पास कुछ ऐसा कुछ क्वेरीज आ रहा है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जरा विचार रखेंगे अपना, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि एनपीके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के थ्रू हमने सॉइल की पूरी केमिस्ट्री बिगाड़ के रख दी है। तो अगर हम बायो कंपोस्ट पर कुछ काम करें और कुछ हमारे अर्थवॉर्म्स वगैरह, तो हम आज के टाइम में जैसे हम जानते हैं कि आज जल भराव अधिक मात्रा में हो जाता है। नदियां आज जो हम कहते हैं कि बाढ़ एक आम बात बन गई है, और इस चीज के पीछे हम रीजन में नहीं जाना चाहते, क्योंकि रीजन क्या था कि हमने पिछले आधी सेंचुरी में हमारा 50% से ज्यादा हमारा जो वेटलैंड खो दिया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दूसरे नंबर पर हम जो कहते हैं कि हमारे जो खेत खलिहान है, बगीचे हैं, जहां पर हम लोगों का पानी भरा हो जाता है, जल भरा हो जाता है। अब चूंकि अगर हम लोग ये एनपीके फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, तो चूंकि जो अर्थवॉर्म होता है इन फर्टिलाइजर्स की केमिकल इफेक्ट से जमीन के नीचे बहुत गहराई में चला जाता है, और उससे क्या होगा कि जमीन में जो होल्स होते हैं, क्योंकि जो आपका अर्थवॉर्म होता है उसका एक नेचर होता है कि वो जिस होल से अंदर जाता है वो बाहर किसी दूसरे होल से निकलता है। तो चूंकि अर्थ में होल्स बनने बंद हो जाते हैं, तो अर्थ की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट डेड हो जाती है, और इवन एयर इनटेक कैपेसिटी भी डेड हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप जरा इस पर प्रकाश डालेंगे। और भी बहुत सारे पहलू हैं हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही मुझे लगता है कि ये हमारा नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि हमने एक ग्रीन रिवॉल्यूशन तो किया था 1970 के आसपास, तो लेकिन उस ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमको पेट भर खाना मिला, और हम एक पूरा जो फूड बकेट ऑफ द ग्लोब बन के पूरी दुनिया के सामने भी आए। लेकिन आज के सिनेरियो में हमारे जो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन से, यानी मेरा कहने का मतलब है जो वो ट्रैक्टर रिवॉल्यूशन था, इट वाज नॉट द ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक्चुअली वो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था इन टर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर। तो मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर की जो रिवॉल्यूशन अब आगे आने वाले समय में हो, वो एक्चुअली नेचुरल रिवॉल्यूशन हो, जिसमें क्या हो कि अर्थ की, सॉइल की जो केमिस्ट्री है वो चेंज ना हो, और जो हमारा जो जमीन का जो भविष्य है, क्योंकि हर चीज का एक भविष्य होता है, तो हम चाहते हैं कि जो अर्थ का भी और जो सॉइल का भी जो फ्यूचर है वो रिटेन रहे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आने वाले बच्चों को एक केमिकल कंपोजिशन छोड़ के चले जाएं, ताकि उनके समय तक आते आते अर्थ और जमीन जो है, जो मिट्टी है, वो मिट्टी ना रह करके एक केमिकल कंपाउंड बन जाए कुछ और थिक हार्ड सा। तो इन सब चीजों पर अगर आज हम समय रहते विचार नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि होने वाला वही है, क्योंकि हमें तो सब दूर से दिखाई देता है। तो इन चीजों पर आप अगर जरा मार्गदर्शन करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। कृपया प्लीज मेहता साहब, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए सर। बहुत शॉर्टली दो बात कहूंगा। एक नेशनल कमिटी बनाई गई है अंडर माय चेयरमैनशिप, विच इज कॉल्ड इको एग्री रिवॉल्यूशन फॉर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसमें ये इकोलॉजी और एग्रीकल्चर के जोड़ने की बात है, और ये होने वाला है। The world is going to definitely move from the green revolution to evergreen revolution through ecological balancing thing, like जैसे मैं mention किया,
when it one very important component of this is the agro waste management. उत्तराखंड की बात अगर हम करें तो you have enough agro waste either from animals or even farm waste और जो पराली बर्निंग की समस्या होती है which is causing it. We have demonstrated and we have the technology which is ready, and I think you should take up putting up some demonstration in your area. It's a deceptively simple technology where the agro waste is collected even by small group or big group, and the microbial spray, which doesn't cost much. The microbial spray enhances, it is like promoting good microbes to play the role, and it converts quickly within 20-25 days to high value biocompost. And high value biocompost is a huge need for all our farms. So आप waste में से best बना सकते हैं, and the technology is also very easily implemented. What is needed, Ramnagar, for one example, or for that matter, even Uttarkashi. These are the areas where I think if once a few such demo units are put, the local people will actually profit from this waste itself, and at the same time you will solve the problem of the environment. So I think this is one very good task which you can very quickly take up in the coming season. Yeah. थैंक यू डॉक्टर मेहता साहब, आपने चीज़ों को बहुत एल्गोरिथ करके हमको समझाया, और हम चाहेंगे कि आगे भविष्य में भी जो आपका इको एग्रीकल्चर और इको फॉरेस्ट्री से आपका हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। भावना मैम प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, आपने बहुत ही विशेष जानकारी हम लोगों के साथ साझा की कि हमें सर्वप्रथम अपने आसपास अपनी सॉइल की प्रॉपर्टी के हिसाब से ही पेड़ों का चुनाव करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो ट्रीज हैं, हमारे जो पेड़ हैं, वो किस लेवल तक, किस डीप तक जाकर के काफी समय तक हम लोगों को, हमारी मिट्टी को रोकने का काम करेंगे। साथ ही आपने हमें ये सुझाव और अपना ज्ञान दिया कि विशेष प्रकार से फर्टिलाइजर के बारे में कि हम इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें। हाँ, आज के परिवेश में जो वर्तमान समय है उसके हिसाब से हमें इस विषय पर सोचना आवश्यक हो जाएगा कि आने वाले जो पीढ़ी है उसको हम उनके पास क्या सुरक्षित छोड़ के जाएं। इसके लिए हमें काउ मैन्योर है मेनली, एंड जो डिकम्पोज लीव्स हैं जो पड़ी हुई रहती है, उनको हम कैसे मैनेज करके हम उन्हें उर्वरक के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे हम अपने वनाग्नि को रोक सकते हैं। साथ ही हम अपने वेस्ट, जो हम लोग अपने हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं या एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, उसको मैनेज करके उसे उर्वरक बना करके जो है अपने फील्ड में अगेन रिसाइकिल यूज कर सके। तो हमें अपनी जो आदत है उसमें शामिल करना होगा कि हम जो रिसाइकलिंग फॉर्मेशन पे जो शुरू हो सकता है कार्य, उसको ज्यादा अपने दैनिक दिनचर्या में लेकर के आए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को और अपने नेचर को बचा सकें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं रमेश, हमारे ग्लोबल फाउंडर के मेन चेयरमैन रमेश तिवारी जी को बुलाना चाहूंगी। सर वो कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है मैम। अपने, हाँ सर। तो परम आदरणीय आज की सभा के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर एम.एच. मेहता साहब, आज की सभा के सम्मानीय अतिथि श्री राहुल जी, सभा के मुख्य संरक्षक प्रोफेसर पी.के. पाठक जी, संरक्षक प्रोफेसर एम.सी. पांडे जी,
तथा शिक्षा जगत की समस्त विभूतियों का मैं रमेश त्रिपाठी तथा शिक्षा जगत की समस्त विभूतियों का मैं रमेश त्रिपाठी ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण चिंता मात्र चिंतन का विषय नहीं, बल्कि संपूर्ण सामर्थ्य से संयुक्त प्रयास करके उसे बचाने का एक अंतिम अवसर है। अन्यथा हम अपने पूर्वजों के उस समृद्ध पर्यावरणीय खजाने के सबसे अयोग्य उत्तराधिकारी कहलाएंगे। ग्लोबल गो ग्रीन की अवधारणा और उत्पत्ति के मुख्य कारणों में हमारा आज का अति उपभोगवादी व्यवहार और पर्यावरण के प्रति उदासीन दृष्टिकोण भी उत्तरदायी है। इन्हीं कुछ मूल बिंदुओं को ध्यान में रखकर ग्लोबल गो ग्रीन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। ग्लोबल गो ग्रीन के तहत संस्थागत रूप से वृक्षों को लगाने के साथ साथ उनके रखरखाव का भी कार्यक्रम है, जो कि नितांत आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परंपरागत वृक्षारोपण में हम लोग एक खुले मैदान में जाकर वृक्षारोपण तो कराते हैं, लेकिन उसके अगले दिन उसकी सुध-बुध लेने कोई नहीं जाता और यह कार्यक्रम महज एक दिन का सेल्फी प्रोग्राम बन जाता है। और औसत के हिसाब से देखा जाए तो इसमें लगने वाले हर 100 वृक्षों में से केवल 4-5 पौधे ही सरवाइव कर पाते हैं। शेष 95% विषम परिस्थितियों के कारण खत्म हो जाते हैं, जो कि ह्यूमन एफर्ट्स के साथ साथ एक प्रकार का मॉनिटरी लॉस भी है। मैं तो इससे आगे चलकर इस बारे में सोचता हूं कि अगर एक नए दृष्टिकोण से इस बारे में देखा जाए तो यह एक प्रकार से प्लांट किलिंग भी है, क्योंकि इससे अच्छी अवस्था में तो वह पौधा नर्सरी में था जहां उसके बचने की संभावना कहीं अधिक थी। आप सब लोग मुझे बताइए कि क्या हम में से कोई अपने घर के छोटे बच्चों को 1-2 महीने का खाना पानी देकर खुले मैदान में छोड़ के आ सकता है क्या? क्योंकि ये तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी हो चुका है आज से दशकों पूर्व कि प्लांट्स ऑलवेज हैव लाइफ। तो हम एक प्लांट किलिंग भी कर रहे हैं साथ में इस तरह के। अब ग्लोबल गो ग्रीन की जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने प्लांट के मेंटेनेंस पर ध्यान देने की बात की है। इसीलिए हम लोग ओपन फील्ड में प्लांटेशन नहीं लगाकर संस्थागत रूप से इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या अदर बॉडीज जो जिनके पास लैंड है या नियर बाय लैंड है, या वो लोग कुछ लैंड आगे पीछे कहीं से कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो जहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन हमारे पास होगा तो हम वहां पर ही प्लांटेशन करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि एक साल में कितने प्लांट लगते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम उनमें से कितना बचा पाते हैं। और इसी के लिए ग्लोबल गो ग्रीन की हमने शुरुआत की है। हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में हमने आशातीत रूप से हमारे पर्यावरण के साथ छेड़खानी की है।
और आप जानते होंगे कि हर 3 सेकंड में पूरी दुनिया से एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर जमीन खत्म होती जा रही है। एवरी 3 सेकंड का ये डाटा है। और लगभग आधी सेंचुरी पे हमने अपना बहुत सारा वेटलैंड का हिस्सा खो दिया है और लगभग 50 सालों में हमने 50% अपना कोरल लीफ भी खो दिया है। और अगर अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री के रेट से भी बढ़े तो हम अगले 50 सालों में 90% का अपना जो हमारा एक्वेटिक लाइफ है, समुद्र के अंदर का जो जीवन है, वो भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि 90% कोरल लीव्स हमारे तब तक खत्म हो जाएंगे। ग्लोबल गो ग्रीन की हमने डिफरेंट एवेन्यूज पर विचार करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सबसे पहले प्लांटेशन वाले सेक्शन को मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इसमें 9 महीने से लेके 1 साल तक हम इंस्टीट्यूशंस को उनके मेंटेनेंस का चार्ज भी देंगे और उनको साथ साथ में उनका जिम्मेदारी भी रहेगा कि वो एवरी मंथ हमको उन प्लांट्स का हिसाब देंगे कि वो कितने प्लांट्स लगाए थे, अभी कितने हैं, क्योंकि उनका जो गार्डनर है, जो क्योंकि हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनके अपने गार्डनर्स होंगे या अपने जो भी उनका स्टाफ होंगे, वो लोग उसको मेंटेन करेंगे और मेंटेनेंस का जो भी कॉस्ट आएगा दैट विल बी बोर्न बाय द ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन। क्योंकि मेरा मानना है कि सॉइल कंडीशन अगर अच्छी होगी तो कम से कम 8-9 महीने एक पौधे को जमीन पकड़ने में लगते हैं और 8-9 महीने बाद जब उसकी रूट्स अर्थ में वेल डेवलप्ड हो जाएंगी और वो जमीन से खुद अपना पानी और मिनरल्स लेना शुरू कर देगा, तो मुझे लगता है कि वो प्लांट फिर पूरी जिंदगी हमको सेवा देता रहेगा। अगर सॉइल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है तो 12 महीने का मतलब 1 ईयर का मतलब देश में जितनी भी मौसम की साइकिल्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो प्लांट अपने को खुद अब सेल्फ सस्टेनेबल बन सकता है। दूसरा, हमने ग्लोबल गो ग्रीन में एनर्जी कंजर्वेशन पर ध्यान रखा है। इसमें हम ये चाहते हैं कि हम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो कि हमारे कार्यक्रमों में भाग लेंगे उनके लिए एक्सचेंज ऑफ CFLs टू LED प्रोविजन हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा एनर्जी डिमांड है वो एक साथ तो मिनिमाइज नहीं हो सकता, बट ग्रेजुअली हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। लो पेपर यूज के बारे में आप सब लोग विदित हैं कि जब से ये ऑनलाइन टीचिंग्स एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज और इस कोरोना के प्रकोप के कारण जो कुछ हमको नई विधाएं